Hello friends, my name is Jitendra. I welcome you all on Simply MBA. This session is just a continuation of my previous session where I finished on analysis of micro and macro analysis under environmental analysis. So here that is competitor analysis, which is a part of micro analysis. It means जब किसी का आप माइक्रो एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटर एनालिसिस. सो हियर वी डिस्कस, हियर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉम्पिटिटर इज फ्रेंड और एनिमी. सो लेट्स स्टार्ट. As always, we start with STP segmentation, which is the most important. Then gradually we move to the targeting and last that is positioning. So under segmentation, once you identify that category you want to launch your product or service, it means एक बार जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस कैटेगरी में मुझे अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी है, सो इन सेगमेंटेशन, so under there, because market is big, so you divide the entire market on the basis of the customer behavior, products behavior, range of products, your feasibility. So there is a chance that you decided ki, okay, now I want to choose this particular segment, right? So the next thing that is segment the entire market. Once you identify your category, you segment the market. And when you segment the market, so the next thing will be you need to analyze the entire competitive scenario, right? So यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो सेशन हमारे होने वाला है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस कॉम्पिटिटर एनालिसिस, राइट? Look at this. So the first question comes up that why competitor analysis? ये क्यों जरूरी है competitor analysis? Here we have Ajay Devgan and the best copy, or maybe the 10th copy of Ajay Devgan. So you need to understand कि अगर मार्केट में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है and you are just the another one, so why customer choose you? So that's why the most important question, it is not like that कि there are n number of player in the market providing the same service, same product and you jumped into the market. So लोग आपको लेंगे क्यों जब वैसे ही प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, might be good, better than you. So you must have the answer. So that's why competitor analysis is important, to identify कि कोई ऐसा तो नहीं जो सेम प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो. So if original is there, why go for a second copy? जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, if the best product or the original product is there, if Bisleri is there, तो why somebody go for Bilseri, right? And if suppose somebody is going to Bilseri, there must be a reason. वो आपको पता होना चाहिए कि वो मुझे क्यों खरीदे. Might be they are price sensitive. होता है अपने रूरल मार्केट में, कभी आप बसेस में ट्रेवल करो, सो आपको हार्डली फाइंड की बिस्लेरी या आपको जो भी अदर ब्रांड्स हैं, राइट, वाटर्स में, वो आपको हार्डली वहाँ मिलेंगे. आपको उसकी बेस्ट कॉपी उधर मिल जाएगी, ठीक. सो एक तो ये है कि आपके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं है. दूसरा ये है बिकॉज द मार्केट इज क्वाइट प्राइस सेंसिटिव. आप उनके पास 15 रुपए का पानी और 10 रुपए का पानी दो, दे इजिली स्विच टू 10 रुपीज वाटर. So that's why that is quite important to understand the behavior of market. Next thing why it is important, if you are the second mover, as I already mentioned, that you must have aware about it. ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, you put a use money on it and then you will realize कि वहाँ तो सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है on less price. So why somebody choose you? So before launch your product, that is important. आजकल नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं हर सेगमेंट में, बट दे मस्ट एनालाइज कि आप जब किसी प्रोडक्ट को लेके जाते हो तो ऐसा तो नहीं कि किसी भी एंगल से कस्टमर को ये लगे कि दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट ऑन अ लेसर प्राइस और अ बेटर क्वालिटी, राइट. सो दैट यू नीड टू एनालाइज. दैट्स व्हाई कॉम्पिटिटर एनालिसिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. किसी को भी कभी भी कोई भी बिजनेस करना हो, सबसे पहले उस मार्केट में जाके यू नीड टू एनालाइज इट कि how many competitor are there, what kind of product or services they are providing, right? Must have reason why customer choose you.
बिकॉज देखिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यू जंप इनटू द मार्केट एंड यू विल फिगर इट आउट कि कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, राइट? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग समथिंग इन आइसोलेशन and you are not the first one who is doing. Might be your style is different, might be your product is little different, but if it is as it is, so that's why you need to analyze if you are as it is, or if you are just in slight here and there, so you must have the reason कि मुझे इसलिए खरीदो उससे कंपैरिजन में. Might be price is the reason, might be quality is the reason. गाड़ी सारी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचा रही है. If I am going to Delhi from Dehradun, so Alto will help me, or bus will help me, or Wagoner can help me, or Mercedes can help me, or any car can help me. So I go for a different car because overall तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सभी काम कर रहे हैं, but the experience is different. So you need to identify, because I am charging you high, so this is the reason. So if you are unaware, आप कहते हो कि नहीं नहीं हमें तो हर हालत में customer will definitely buy me because that is my gut feeling. Nobody will buy your products or services. You must have the reason as you enter into the market, right? So that's why sometime competitor create market for all player. If there is only one player, so might be very few chunk of customer are purchasing that products. But once the competition is high, that everybody is awareing कि ऐसा कर लेते हैं. I give you one very basic example. पहले क्या था, there are very few जो कि ऑनलाइन कोचिंग में थे, तो हार्डली रिकॉग्नाइज की कुछ ऑनलाइन कोचिंग भी हो सकती है. उन्होंने लोगों को एजुकेट किया that this is the comfort, this is the technology, this is how you can just at your home comfort you can just access all the lecture and all. उसी के साथ साथ there are many player come into the picture and they create the awareness. So उससे ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे को लॉस हुआ. इवन जो पहले हो सकता है टोटल मार्केट में से केवल 1% को टारगेट कर पा रहा था, नाउ ही इज टारगेटिंग टू द 10% and the other is targeting to the 10%. So all together they increase the market because everybody is creating awareness. There are many players like Coursera, there is a government website Swayam, Udemy is the one website I think, ठीक है. And there are many websites those who are providing that blended learning. It means while you are college you can just go to that website, register yourself for a particular course, you get a credit for it, right? So there are I think more than 10 websites right now that help you out. So अगर एक वेबसाइट होती जो इस तरह की चीजें प्रोवाइड कर रही होती है, प्लेटफॉर्म दे रही होती है, तो माइट बी द वेरी फ्यू कस्टमर आर देयर, वेरी लेस पीपल आर अवेयर अबाउट इट, बट बिकॉज देयर आर मेनी वेबसाइट दे आर जस्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इट्स विन विन फॉर ऑल. So that's why sometime competition is good for everybody. Raju Srivastav is there because Amitabh Bachchan is there, right? The existence of Raju Srivastav is because of Amitabh Bachchan. And Raju Srivastav mimic Amitabh Bachchan so that everybody understand that he is the legend character or actor. That's why he is mimicking the Amitabh Bachchan. So that's why competition is quite important, but simultaneously that is also important to understand the competitor scenario. How many competitors are there? What kind of market is there? Understand? So let's move to the next slide. Right. Type of competition. So it's divided into three parts. Category competitor. I am in one category. Here is one example, soft drink. तो सॉफ्ट ड्रिंक एक कैटेगरी है, हो सकता है इस पूरी कैटेगरी का कोई कॉम्पिटिटर है. इट मीन्स दैट कॉम्पिटिटर इज जस्ट ग्रैबिंग द कस्टमर फ्रॉम योर बकेट. ठीक. सो दिस इज द एग्जाम्पल कि हो सकता है लोग सॉफ्ट ड्रिंक से हेल्थ ड्रिंक की ओर मूव कर रहे हो. आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. आजकल लोग कोक, फैंटा, मिरिंडा और ये सारी की जगह पे कई लोग कहते हैं जी हमें रियल का चाहिए.
फ्रूट जूस, या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन किसान मेट का चाहिए, या देयर आर मेनी अदर, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल, राइट? सो इट मींस लोग सॉफ्ट ड्रिंक से हेल्दी ड्रिंक की ओर मूव कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड कैटेगरी कंपटीशन, कि कैटेगरी जो है, पूरी कैटेगरी जो है सॉफ्ट ड्रिंक का कंपटीशन अब हेल्थ ड्रिंक से होने लग गया, राइट? सो दिस इज कॉल्ड कंपटीशन बिटवीन कैटेगरी. द सेकेंड एग्जाम्पल इज बिटवीन द सेम कैटेगरी. अब मैं अगर सॉफ्ट ड्रिंक की बात करूं तो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, उनके बीच में ही है. पेप्सी कह रही है मुझसे ले लो, थम्स अप कह रहा है मुझसे ले लो, स्प्राइट भी कह रहा है कि हमें पी लो आप, ठीक, मिरिंडा इज देयर, 7 अप. So it means in the same category there are many competition, so you need to fight with them also, because one customer not go for everybody, right? ये तो इतना अच्छा दिन हो आपका कि आपका सारे को you can just satisfied the category and the internal in the same category you are satisfying the all. So होता क्या है कि आपको internal category same category में भी competition है, category to category भी competition है, तो आपको दोनों एनालाइज करने पड़ेंगे. थर्ड इज शैडो कॉम्पिटिटर. कई बार होता क्या है, यू विल नॉट रिकॉग्नाइज. बीइंग इन टाटा स्काई आई थॉट कि मेरा शायद कॉम्पिटिटर जो है वो डिश टीवी है या D2H है, ये वो हो सकता है जो फ्री में कुछ सर्टेन चैनल आपको प्रोवाइड कर सकता है, मैक्स टू मैक्स. सो दैट इज द रेंज आई कैन सी. बट उन्हें ये पता नहीं चला इफ इंटरनेट इज सो एक्सेसिबल, if everybody can reach to that speed of internet. So right now scenario is this, people are just stopping their Tata Sky, they just go for an Wi-Fi, Jio and Airtel fiber and all, and वो flip Netflix, Amazon और इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं. तो अगर इंटरनेट को एक बारी हम हटा दें तो आप Netflix भी यूज नहीं कर पाते, Amazon भी यूज नहीं कर पाते, हॉटस्टार भी यूज नहीं कर पाते, आपको डिश टीवी ही लगाना पड़ता, टाटा इसका ही लगाना पड़ता. बट हुआ क्या, नेट बड़ा एक्सेसिबल हो गया, स्पीड बहुत अच्छी हो गई, प्लेटफॉर्म आ दिया, लोगों ने कहा कि हम इनको यूज नहीं करते, हमें एक स्मार्ट टीवी चाहिए जिसमें ये सारी फैसिलिटी हो, नेटफ्लिक्स है ऑल, अमेजॉन एंड ऑल, और डिश टीवी बाहर चला गया. तो समटाइम इट्स नॉट क्वाइट विजिबल, यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज कि ओके दैट इज माई कॉम्पिटिटर. समटाइम इट्स इन शैडो. So you need to recognize that shadow also. So once you are into that type of analysis कि अब मुझे competitor देखने, तो आपको अपनी कैटेगरी में भी competitor देखने, अपने कैटेगरी के बियॉन्ड दूसरी कैटेगरी से भी देखना कि कितना competition हमें है, एंड लास्ट कई बार आपको shadow competitor को भी देखना होता है. There are many example, right? So हम उसको ग्रेजुअली बात करेंगे उसके बारे में. ओके, कॉम्पिटिटर स्पेस. अब एक तो हो गया टाइप ऑफ कंपटीशन कि कहां कहां आपको मिल रहा है. अब आपको देखना है कि अगर आपको कंपटीशन है तो कॉम्पिटिटर कहां कहां हो सकता है, उसको कहां कहां आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो. फर्स्ट वन इज एन ऑनलाइन स्पेस. आज का जैसा सिनेरियो चल रहा है दैट कॉम्पिटिटर आर ऑनलाइन अवेलेबल. Here I give you one example. Best place to visit in India with friends. If you just Google it, so you get n number of option. You can do right away. Just type best place to visit in India with friends. So there are many option. Might be 10, 20 option. अब इन 20 ऑप्शन में एक आपके पास गोवा का होगा, एक केरला का होगा, एक उत्तराखंड का होगा, एक चोपता का होगा, ऋषिकेश का होगा, मनाली का होगा. देयर आर मेनी ऑप्शन. सो गोवा का कंपटीशन अब आपका केरला से हो गया है, चोपता का कंपटीशन आपका ऋषिकेश से हो गया, मनाली का आपका मसूरी से हो गया है. सो आपका कॉम्पिटिटर जो है इज सिटिंग ऑन ऑनलाइन. ठीक. सो आपको ऑनलाइन भी उसको समझना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरह से खुद को प्लेस कर रहा है ऑनलाइन. Once this is the one place where competitor are sitting, the next place is national competitor. जैसे मैंने बताया आपको कि best place to visit in India, so these are the competitor. Goa can compete with Kerala, Chopta is compete with Rishikesh,
मसूरी इज कॉम्पिटिंग विद मनाली, कुल्लू मनाली, ठीक। सो इट मीन्स देयर आर नेशनल कॉम्पिटिशन ऑल्सो। इफ आई सी कि हमें कहाँ ट्रेवल करने जाना है, इट इज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, so these are the competition nationally. But once you enter into that place, if I enter into the Goa, then I just search the best accommodation, so it means अब competition nationally अब इस local में आ गया। best resort, ठीक, best beach to hang around, कौन सा बार है जहां पे हमें रात को जाना पड़ेगा, राइट, कौन सा डिस्क है जहां पे रात को ज्यादा सही रहेगा। सो इट मीन्स देन यू आर सर्चिंग लोकली। सो ये 3 जगह हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर। एक ऑनलाइन स्पेस में बैठा हो सकता है, ठीक। आई गिव यू एग्जांपल लाइक जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला, जहां आपका कंपटीशन ही ऑनलाइन है। नेशनली भी कह सकते हैं बट लोकल लेवल पे उतना नहीं, बिकॉज दीज आर द नेशनल प्लेयर। कुछ ऐसी चीजें होंगे वो आपको उनको नेशनली भी कॉन्कर करना है, लोकल लेवल पे भी कॉन्कर करना है, एंड देन ऑनलाइन में भी उनको कॉन्कर करना है। सो दीज आर द प्लेस वेयर यू कैन जस्ट फिगर आउट योर कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट, ओके, वंस यू आर एनालाइजिंग द कॉम्पिटिटर इन ऑनलाइन स्पेस, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है? What are the key factors you must recall, remember and save in your memory when you are analyzing your competitor online space? First one, Google ranking. If I searching something, so Google analysis must show you. You design in a way by which you must be in the search para. अगर आप गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहे हो, देयर इज नो वन एंड देन हार्डली 1% जो कि सेकेंड पेज तक सर्च करने जाते हैं। तो इट मीन्स आपकी रैंकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए एज पर योर प्रोडक्ट दैट यू आर कम अप इनटू द फर्स्ट पेज। पहले तो पहली रैंक पे आ जाओ, सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट, इफ नॉट टॉप मोस्ट एटलीस्ट ऑन दैट पेज। हियर इज वन एग्जाम्पल, कॉफी शॉप नियर मी। आप कहीं पे भी खड़े हो, किसी भी सिटी में, आप कुछ भी सर्च करें ये डाल के नियर मी, सो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन। अब जिसका सबसे सटीक बैठेगा, जिसकी लोकेशन अच्छी बैठेगी, वी जस्ट चेक आउट द रिव्यू एंड ऑल, वहां आप लोग चले जाओगे। सो आपको गूगल रैंकिंग में भी अच्छा होना है। जस्ट स्टाइल इज वन अनदर ऑप्शन। अगर मैं ऑनलाइन स्पेस की बात करूं, आपकी कुछ फर्म है, मस्ट रजिस्टर ऑन जस्ट स्टाइल, because in big city, because there are n number of options, you cannot search out each and everything. तो through just style you can get the maximum numbers. मैं कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ, किसी चीज़ का वेंडर ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई फर्नीचर वेंडर चाहिए, तो I just search or just ask the just style, you just share the few contacts of furniture vendor or vegetable vendor or anyone. तो just style will help you out. Third one, I give you one more example like car देखो। If you are the best car manufacturing company but you are not registered with Car Dekho and the national player, so somehow you are obsolete. So that's why it's quite important कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको उस प्लेस पे भी आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका होना चाहिए when somebody is searching for you, or maybe a product like you, or maybe a service like you. So your website will be like this. So that's why right now this is the era where you are physically available along with online. I give you one example. There are many food joint right now जिनका कोई ऐसा पर्टिकुलर है ही नहीं रेस्टोरेंट, वो घर से ही काम कर रहे हैं, but they are registered with Zomato, Swiggy. They are providing the best products because उनकी शॉप की कॉस्ट कोई है नहीं, लोगों को सर्विस करने की कोई कॉस्ट है नहीं, उनका तो टेस्टी बनाना है और स्विगी या जोमेटो से लोग आएंगे और किसी और को डिलीवर कर जाएंगे। सो दे आर अवेलेबल इन ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन स्पेस ओनली, राइट, बट दे आर रजिस्टर्ड विद द राइट कैटेगरी, राइट वेबसाइट. So that's why you need to understand in nutshell with an online space. So that's why online space analysis is quite important. Next thing is analyze the national market. If your product is like this that you are delivering nationally, तो you need to analyze कि उस national market में और कौन से player हैं. Give you one example like Lay's. Lay's की अगर हम बात करें
तो केलॉग्स का प्रिंगल्स आपने सुने होंगे, कुरकुरे, बिंगो, हल्दीराम के हैं, पार्ले के हैं, डायमंड्स के हैं. सो दीज आर द प्लेयर विच आर ऑफरिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट प्राइस. 5 रुपए का भी है, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, राइट. सो दे एनालाइज द मार्केट कि नेशनल मार्केट है, यहाँ पे ये प्लेयर है, इनकी ये प्राइस है. एंड इफ यू आर लिटिल प्राइस हाई, मस्ट बी यू डिलीवर द क्वालिटी, सो द पीपल विल परचेज यू. सो दिस इज द place where you analyze yourself. This is one more example like two-wheeler market. अब two-wheeler market एक national market है. So this is just an stat of August 2021. अलग अलग two-wheeler segment में अगर हम देखें, जो maximum share हैं that is with Hero MotoCorp. This is the market share of two-wheelers 36.5. सेकेंड पे अगर हम जाएं तो उसमें आपको दिख रहा है होंडा का, फिर टीवीएस मोटर का, राइट, फिर बजाज ऑटो का. सो दिस इज द नेशनल मार्केट एनालिसिस. अगर आप नेशनल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या कोई नया प्रोडक्ट नेशनली लॉन्च कर रहे हो, तो यू नीड टू एनालाइज कि किसके पास कितना मार्केट शेयर है, क्यों. एनालाइज द लोकल मार्केट. इफ यू आर नॉट नेशनल प्लेयर, अगर आप नेशनली अवेलेबल नहीं हो, केवल लोकल में हो, तो देन यू नीड टू एनालाइज द लोकल मार्केट. एंड सम टाइम इट डिपेंड्स कि आपको एक लोकल नीड्स को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा रिडिजाइन करना होता है. इट मीन पार्ले जी अवेलेबल इन 5 रुपीज, पार्ले जी अवेलेबल इन 10, 20, 15 रुपीज एंड इवन 50 रुपीज, द सेम पैकेट. But in mall it is available only in 20 and 20 plus rupees, but where in an outlet in a particular village it is available in 5 and 10 rupees. So that's why here the point is coming up that आपको ये भी एनालाइज करना है कि लोकल मार्केट में आप कहाँ पे हो, या लोकल मार्केट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए. विशाल मेगा मार्ट में आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम द नेशनल ब्रांड दे हैव देयर ओन कैटेगरी, ओन प्रोडक्ट्स. तो वहां आपको कुरकुरे भी मिल जाएगा और उनका कुछ अपने घर से निकला हुआ कुछ और भी मिल जाएगा. सो उस लोकल मार्केट में दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स, एज पर द सिटी. सो दिस इज द सेकेंड थिंग. वंस यू आर डिसाइडेड कि ओके दिस इज माई कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज एंड शैडो, देन यू जस्ट एनालाइज कि ये ऑनलाइन में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, नेशनली है या लोकली है, and what will be the strategy. Is it standard strategy throughout the medium, and might be sometime it's a different strategy, right? Next thing, once you analyze everything, जब आपने सारा कुछ एनालाइज कर लिया, then might be in a competitive analysis overall जो आपको कंपैरिजन करना है. I just figure out कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं. एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. मैं एक कॉफी शॉप स्टार्ट करना चाह रहा हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट बाकी कॉफी शॉप से किस तरह से डिफरेंट है, या व्हाट आर देयर ऑफरिंग. सेकेंड थिंग, व्हाट इज माई प्राइस. ऐसा हो ना हो मेरी क्वालिटी उनसे बेकार हो, प्राइस उनसे हाई हो, तो नोबडी विल कम. या मैं कॉफी शॉप में इसके अलावा क्या दे रहा हूं, एम्बियंस कुछ इस तरह का दे रहा हूं. सो प्राइस मस्ट जस्टिफाई इट. ठीक. सो द फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट, नेक्स्ट थिंग इज प्राइस, नेक्स्ट थिंग इज अ प्लेस. इफ आई वॉन्ट टू ओपन अ कैफे, तो दैट आई मस्ट अंडरस्टैंड कि मैं कौन सी जगह इसको करूं, किस तरह के कस्टमर को आई एम गोइंग टू टारगेट. उस हिसाब से मुझे वो प्लेस डिसाइड करना होगा. एंड इफ वी हैव एन कॉम्पिटिटर 1, कॉम्पिटिटर 2, कॉम्पिटिटर 3, तो उनकी एक बनानी पड़ेगी हमें. सो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर 1, इसका प्रोडक्ट ये है, इसकी प्राइस ये है, ये यहां पे है, एंड इसकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ये है. सिमिलरली कॉम्पिटिटर 2, इसका प्राइस ये है, प्रोडक्ट ये है, प्लेस ये है, एंड इसकी कम्युनिकेशन या प्रमोशन स्ट्रैटेजी ये है. एंड लास्ट, माई प्रोडक्ट्स, माई प्लेस, माई प्राइस एंड माई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी. So if it is solved there, definitely you will conquer the market. So that's why last is promotional strategy. Once you are done with it, so at least you must have a clarity कि मेरे को क्या करना है,
कॉम्पिटिटर सिनेरियो में जनरली कॉम्पिटिटर एनालिसिस को हम स्टार्ट ही और एंड इससे करते हैं स्वॉट एनालिसिस, बट मैंने स्वॉट एनालिसिस डायरेक्टली नहीं किया, बिकॉज बिफोर स्वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉम्पिटिटर है कहाँ कहाँ, है कौन कौन. Everybody must understand the kind of competition you are facing, in which category, beyond category, shadow category, on which place. Compare their 4P, product, price, promotion and place. And then last, automatically, if you analyze all mentioned thing, you will get your strength, competitor strength, your weakness, competitor weakness, what opportunity you have, and what kind of threat you have in future. So in general, people start and end with SWOT analysis, but before SWOT analysis, if you do all that analysis, you automatically get the answer. आपको खुद की strength, competitor की strength मिल जाएंगी, competitor की weakness मिल जाएंगी, that you can create your strength. If there is any particular weakness of competitor, that might be a good thing or a positive thing or a strength for you. From that weakness you can create an opportunity. You must aware कि भाई ये एक opportunity बनती है, because customer is demanding X thing, competitor is providing Y thing, so this is an opportunity that I will provide X thing. Simultaneously you must check with the threat. अगर आप वो चीज़ देते हो तो कोई ऐसा नहीं कोई उसका रिपरकर्शन है, गवर्नमेंट बाउंडेशन है, लोकल कुछ कहानी है, ये हो सकता है फ्यूचर में देयर आर n number of player which are planning to come into that category, so that all you need to analyze. So if you analyze your SWOT analysis, you are ready for next assignment, that is called targeting. So once you identify your category, once you identify your segment, once you analyze all the analysis, external, internal, जिसको माइक्रो एंड माइक्रो में मैंने बताया था, अंडर विच देयर इज इंडस्ट्री एनालिसिस, एनवायरमेंट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, कॉस्मिक एनालिसिस, एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट इज द कॉम्पिटिटर एनालिसिस. सो वंस यू आर डन विद इट, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट टारगेटिंग. दैट इज द नेक्स्ट एपिसोड. स्टे ट्यून विद मी.